Welcome to my channel CA Joyam. We shall discuss the income tax amnesty granted by the interim budget of 2024. Go through the PowerPoint presentation, like and subscribe to the channel. Hi friends, happy weekend. Now today's video, some of it will be with a voiceover in my PowerPoint presentation. This is regarding the income tax amnesty announced by the interim budget of 2024. थोड़ा टाइम हो गया ये डिस्कस कर रहे हैं, पर इसके फाइनर पॉइंट्स अभी अभी आने लगे हैं. सबसे पहले एनी डिमांड अप टू असेसमेंट ईयर 10-11 डिमांड एंट्रीज एंड फ्रॉम 10-11 अप टू असेसमेंट ईयर 15-16, ये दो पीरियड्स में कवर्ड है. अप टू 10-11 25,000 पर डिमांड एंट्री का कंप्लीट वेवर गवर्नमेंट आपको दे देगा अगर कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग है इनकम टैक्स का. और उसके बाद 15-16 तक 10,000 रुपए पर डिमांड एंट्री. पर ये डिमांड कौन से एक्ट का इनकम टैक्स में? तो तीन तरह के एक्ट है जिसमें ये वेवर लागू है. इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेल्थ टैक्स एक्ट एंड गिफ्ट टैक्स एक्ट. ये तीनों एक्ट के डिमांड है अप टू 10-11 फ्रॉम अर्लीस्ट असेसमेंट ईयर टिल 10-11 25,000 डिमांड एंट्री पर एंड 15-16 तक 10,000 रुपए पर डिमांड एंट्री टोटली वेव्ड ऑफ है. अब डिमांड एंट्री मतलब कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड which includes interest, penalty, cess up to 25,000 का डिमांड है तो waived off है. पर ये अर्लीस्ट असेसमेंट ईयर अप टू 10-11 एंड अप टू 15-16 टोटल वेवर अमाउंट फॉर द एसएससी विल बी ओनली ₹1 lakh. द वेवर, द एमनेस्टी विल नॉट बी अबाउ ₹1 lakh. और आप कोई भी ईयर का डिमांड कोई भी ईयर में 15-16 हजार पीस मील में नहीं कर सकते. मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के वॉइस ओवर में विद अ वीडियो ये एग्जाम्पल मैंने एक शीट में कवर किया हुआ है. पर आपको जो डिमांड वेवर मिल रहा है इट इज अ इनकम, राइट, बट देयर विल नॉट बी एनी टैक्स. ये सीधा आप कैपिटल में ऐड कर सकते हैं. नाउ सीलिंग लिमिट 1 lakh है. द रेमिशन or extinguishment of the entire outstanding demand shall be carried out starting from the earliest assessment year till 15-16 subject to a maximum ceiling of ₹1 lakh only. This waiver shall not attract any tax liability under section 224. It shall be added to your capital via accounting entries पे फिर से कोई income tax नहीं है. इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग विल नॉट बी वेव्ड ऑफ, तो वो भी उसमें मेंशन रहेगा. डिलेड रिटर्न जो फाइल की है अगर उसका पेनल्टी लग रहा है सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत तो वेव ऑफ नहीं होगा. द डज नॉट अप्लाई टू एनी टीडीएस टीसीएस डिटेल और मिसमैच. मतलब अगर कोई टीडीएस या टीसीएस रेमिटेंस में पेनल्टी लगा है, डिमांड अराइज हुआ है, तो ऐसे डिमांड्स ये वेवर के लिए एलिजिबल नहीं है. तो नॉर्मल डिमांड एंट्रीज एलिजिबल है. This is the income tax amnesty and you can go to your e-filing portal, check the demand and you can claim the waiver up to 10-11 25,000 per entry. From 10-11 till 15-16 10,000 per entry. टोटल वेवर ये साल का 15-16 तक 1 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए. टीडीएस टीसीएस का कोई वेवर नहीं है. ये डिमांड विड्रॉ हो भी गए और आप पे कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी चल रहा है कोर्ट में इनकम टैक्स को लेके ये ईयर से लेके, यू आर नॉट ऑटोमेटिकली रिलीव फ्रॉम दैट. वो केस अलग चलते रहेगा. वो ये एमनेस्टी वो क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है. So go through the PowerPoint presentation also. Mail me in my mail ID so that I can reply with bigger and better presentation. Have a nice week. We'll be back with more videos. Continuing with the income tax amnesty, the tax demand raised under Income Tax Act 1961, Wealth Tax Act 1957,
Gift Tax Act 1958 are covered in this income tax amnesty announced by the interim budget. The monetary limit for waiver until the assessment year 2010-11, that is financial year 9-10, outstanding demand entries up to rupees 25,000 are eligible, whereas from the assessment year 11-12 till 15-16 the waiver applies to demand entries of up to rupees 10,000. The demand entry is not defined, right? In general parlance, it can refer to any entry by the income tax department in its records. There is no waiver for TDS or TCS demands. Eligible tax demand and maximum ceiling. Eligible outstanding tax demand covers principal tax demands, interest, penalty, fee, cess or surcharge, and maximum limit eligible for relinquishment is 1 lakh rupees only, and it can be claimed in fragments. The interest on account of delayed payment उसका waiver नहीं मिलेगा. नो टैक्स लाइबिलिटी, ये जो वेवर आपको मिल रहा है वो एक तरह से आपका इनकम हो गया, पर इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये सीधा आप कैपिटल में ऐड कर सकते हैं. अर्लीस्ट असेसमेंट ईयर से लेके 10, 11 और 15, 16 तक टोटल लिमिट है 1 लाख रुपीज. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल 4-5 में आपका डिमांड आउटस्टैंडिंग 22,000, फिर 24,000, फिर 20,000, फिर 18,000, फिर 24,000. As per the orders, demands from 2004-5 till 7-8, 84,000 आपका वेवर हो जाएगा. पर आप वो बैलेंस 1 लाख में से 16,000 क्लेम नहीं कर सकते हैं. आपको वेवर 84,000 ही मिलेगा और ये पूरा 24,000 भरना पड़ेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये 24 में से 16 आप क्लेम नहीं कर सकते फ्रैक्शन वो 1 लाख में से. क्यों? Even though it is within the monetary limit of 25,000, you are exhausting your 1 lakh limit और फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, तो ये 24,000 में से 16,000 का वेवर आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज द इनकम टैक्स एमनेस्टी. रेस्ट यू मस्ट हैव हर्ड माय वीडियो रिकॉर्ड.